Good morning all. Today I'll discuss about SQL, right? So SQL stands for Structured Query Language. SQL में हम टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल हम रिलेशनल डेटाबेस में टर्म्स यूज़ करते हैं ना, कि टेबल हो गया, राइट, और रिलेशन हो गया, टप्पल हो गया एंड एट्रीब्यूट हो गया. तो SQL में हम इन्हीं टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं. रिलेशन को हम यहाँ पे बोलते हैं टेबल, टप्पल जो होता है वो हमारा बन जाता है रो, एंड एट्रीब्यूट का होता है जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमारे किस फॉर्म में आएंगे, कॉलम फॉर्म्स में आएंगे, राइट. तो SQL के बेसिक स्ट्रक्चर में हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, राइट. Next, SQL is a database language. We all know that. It has statements for data definition, queries, and updates. So let's see what type of statements are covered in SQL. So first is DDL, that is data definition language. This language is used to define the structure of data, right? Second is DML, as the name depicts, that data manipulation language. So through this language we can manipulate the existing data. Next is DCL, that is data control language. Through this language we can control the different operations in the database. And fourth one is TCL, that is transaction control language. And this language helps us to control the transactions which are running in the database, right? So before starting the DDL, DML, DCL or TCL, let's see what are the different types of data types in SQL, right? So first is numeric. If you want to store some data in the numeric form, then we can use integer or int data type. Next is character string, right? So here two cases arise. If I want that the value I want to save should be of this fixed length always, right? Then we will use character n, right? char n. But if I want that the value which I am storing can be of the flexible length, right? कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जो 4 से कम होंगी, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं varchar, राइट. तो varchar मीन्स वेरिएबल करेक्टर. तो n का मतलब है हम यहाँ पे साइज़ डिफाइन कर देते हैं. तो मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे अगर मैं varchar 10 लिख देती हूँ डेटा टाइप, इट मीन्स जो भी मेरी सपोज नेम की ये डेटा टाइप है, तो अगर मुझे नेम की वैल्यू स्टोर करनी है ना, अप टू 10 तक मैं जितनी मर्जी वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ. कोई 5 करेक्टर्स की भी हो सकती है, 7 करेक्टर्स की भी हो सकती है, 8 करेक्टर्स की. बट अगर आप लिख देते हो char 10, तो इट मीन्स जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो वो 10 करेक्टर्स की ही होनी चाहिए, राइट. तो char का मतलब वो फिक्स्ड होता है, मतलब इतना जितना साइज़ आप दे देते हो उतने साइज़ का ही होना चाहिए. और वेरिएबल करेक्टर का मतलब है मैक्सिमम साइज़ हम डिफाइन कर देते हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, राइट. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन character and variable character. So next is date. If I want to define some date of birth or any special date, then we can use date data type, right? And it is defined in the form of 10. It is defined in the form of 10 positions, 4 values for, you can see here, 4 values for year, 2 values for month, and 2 values for date, right? So total 10 positions we have to specify here. Next, if our data is of some boolean type, like I want the data to be either true or false, then we can use boolean data type. And next is bit string. तो बिट स्ट्रिंग भी आपकी दो टाइप्स की होती है. अगर आपको बिट्स की कोई भी आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो ये भी हमारी दो टाइप की होती है. एक तो फिक्स लेंथ होती है और एक वेरिंग लेंथ. तो फिक्स लेंथ में बिट हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब भी सेम है कि जितना आपने एन डिफाइन करके रखा हुआ उतने का ही आपका जो भी इनपुट डेटा होना चाहिए. और बिट वेरिंग का मतलब है अप टू एन तक आपके नंबर ऑफ बिट्स हो सकते हैं, राइट. सो ये थी डेटा टाइप्स. अब आगे हम देखते हैं कि SQL की कमांड्स कौन कौन सी हैं. So next is, so first of all we'll talk about data definition language. So this is DDL command, as I had told you earlier also. This is used to define the structure of the database, right. So under the category of data definition language there are different 5 statements or commands. First is create, which is used to create a new table. As we all know that relation is called as table in the SQL. Second is alter, if I want to modify the existing table, right. Next is drop, if I want to delete a particular table or value in the database permanently. Next is truncate, if I want to delete all the values of the table, not permanently, but I will only delete them. Next is rename, if I want to rename some particular table name. So let's start with create. So syntax for create is create table name, it is written over there.
create table table name and bracket start column name and data type column name 2 and data type. It means we are creating a table here with a particular user defined name table name where I am having टू कॉलम्स, कॉलम नेम 1 एंड उसके साथ उसकी डेटा टाइप है, देन कॉलम नेम 2 उसके साथ डेटा टाइप्स एंड सो ऑन. मीन्स आप कितने मर्जी एट्रीब्यूट्स या आप कॉलम नेम्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट. तो इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं. तो सपोज़ मुझे कोई टेबल क्रिएट करना था स्टूडेंट का, तो उसके दो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, नेम एंड एड्रेस. तो हम उसको कैसे सीक्वल में क्रिएट करेंगे. सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जो टेबल का नाम होता है ना ये यूज़र डिफाइंड होता है. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप जो टेबल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं. उसके बाद दो हमें एट्रीब्यूट्स लेने हैं, नेम एंड एड्रेस. तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ये आप इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं. ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेम पहले चाहिए या एड्रेस पहले चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑर्डरिंग यहाँ पे मैटर नहीं करती है. तो चाहे आप पहले नेम को लिख लो, चाहे आप एड्रेस को लिख लो, राइट. सो फर्स्ट इज़ नेम varchar 20. तो इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया है वो एट्रीब्यूट नेम का है. स्टूडेंट का कोई टेबल मैंने बनाया जिसमें एट्रीब्यूट है नेम और वो 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है. मीन्स जो भी स्टूडेंट का नेम होगा वो अप टू 20 कैरेक्टर्स तक हो सकता है, वेरिंग लेंथ का. इतना नहीं है कि 20 चाहिए, बट अप टू 20 हो सकता है, राइट. सो नेक्स्ट इज एड्रेस varchar 15. तो लाइकवाइज अगर आपका एड्रेस है स्टूडेंट का तो वो भी अप टू 15 कैरेक्टर्स हो सकता है. और एंड में सेमीकोलन ज़रूर. जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे ये आपकी क्वेरी या ये आपकी कमांड या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट. सो जब आप इसको बना दोगे तो इस टाइप से आपका डेटाबेस में बन जाएगा. स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एंड एड्रेस, राइट. सो नेक्स्ट इज़ ड्रॉप. जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बोला था, ड्रॉप का मतलब होता है परमानेंटली डेटाबेस में से टेबल को डिलीट कर देना, और उसने जो ऑक्यूपाई की थी स्पेस डेटाबेस में उसको भी परमानेंटली डिलीट कर देना. एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट. तो डिलीट का मतलब क्या है, आप सिर्फ वैल्यूज़ को डिलीट कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं कर रहे हो. बट ड्रॉप का मतलब है आप पूरा टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट कर रहे हो, कि मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा डेटाबेस में, राइट. तो डिलीट से वो स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यूज़ नहीं होंगी. बट ड्रॉप से क्या है, स्ट्रक्चर टोटली डिलीट हो जाएगा, कुछ भी हमें वहाँ पे विजिबल नहीं रहेगा. तो इसका आपका सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल टेबल नेम. तो एग्जांपल होगी ड्रॉप टेबल स्टूडेंट. तो जो स्टूडेंट टेबल मैंने ऊपर बनाया, मुझे अगर इसको ड्रॉप करना था तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, राइट. उसके बाद है ऑल्टर. अब ये जो सारी कमांड्स है ना ये उसके अंडर आती है हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं अपने डेटा का. तो थर्ड इज़ ऑल्टर. अगर मुझे कुछ ऑल्टरेशंस करनी है, जैसे अगर मैं बात करूँ पहले यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया सिर्फ मैंने दो एट्रीब्यूट्स लिए थे, नेम एड्रेस, दो कॉलम नेम लिए हैं. नेक्स्ट इज़ अगर मुझे कोई और भी ऐड करना है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं. तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर, राइट. सो सिंटेक्स देखते हैं इसका क्या है. ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप. तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं. ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड मतलब मुझे ऐड करना था उसमें डेट ऑफ बर्थ नाम के एट्रीब्यूट को ऐड करना, और उसकी डेटा टाइप क्या है, डेट. तो जब आप ऑल्टर कर दोगे आपने एक न्यू एट्रीब्यूट इंक्लूड कर दिया अपने टेबल में, तो इस टाइप की अपीयरेंस हो जाएगी उसकी. नेम और एड्रेस तो उसमें पहले से ही थे, अब DOB भी डेट ऑफ बर्थ भी मैंशनड हो जाएगा, राइट. एंड नेक्स्ट इज ट्रंकेट. ट्रंकेट इज़ यूज टू डिलीट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द टेबल. तो आप सिंपल इसमें लिख सकते हो ट्रंकेट टेबल टेबल नेम. तो हमारा टेबल नेम स्टूडेंट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, राइट. उसके बाद जो फिफ्थ TTL कमांड है दैट इज़ रीनेम. तो अगर आपको टेबल का नाम एग्जिस्टिंग टेबल का नाम चेंज करके कुछ और रखना है तो आप लिख सकते हो. सिंटेक्स है रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम. तो इसकी एग्जांपल आपकी होगी रीनेम स्टूडेंट टू स्टूडेंट 1. तो पहले देखो यहाँ पे स्टूडेंट था, अब यहाँ पे नाम क्या हो गया उसका चेंज होके स्टूडेंट 1, राइट. So this was the first type of languages that comes under SQL, data definition language. So next अब हम करेंगे DML, that is data manipulation language, right. As the name depicts, this language is used to perform manipulations in the database, right. So first of all is insert. अगर आपको कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है टेबल में, तो जैसे क्रिएट से तो हमने कर लिया था, क्रिएट टेबल स्टूडेंट और दो एट्रीब्यूट्स दे दिए थे उसके नेम और एड्रेस. तो अगर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो इसका आपका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, वैल्यू 1 वैल्यू 2, कौन सी आप वैल्यूज़ देना चाहते हो, राइट. तो इसकी एग्जांपल देख लीजिए. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट. स्टूडेंट क्या था, हमारे टेबल का नाम था,
वैल्यूज़, उसमें आगे अब जिस ऑर्डर में आपने टेबल क्रिएट किया था ना कि पहले नेम आएगा, उसके बाद फिर आपका एड्रेस आएगा, तो उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ लिखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले रिया लिख रही हूँ तो इट मीन्स कि फर्स्ट जो वैल्यू होगी, जो पहला कॉलम रहा होगा वो नेम का था, उसमें मैंने रिया को इंसर्ट कर दिया, और जो सेकंड कॉलम जॉन सा भी होगा उसमें मैंने दिल्ली की वैल्यू पुटअप करी है। अब जो भी आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम सिंगल कोट से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो ये आपका इस टाइप का टेबल अपेयर होगा, नेम के नीचे रिया आ जाएगा और एड्रेस के नीचे दिल्ली आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप सेम इंसर्ट कमांड को 5 टाइम्स उसको रन करोगे तो सेम टाइप की 5 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप डिफरेंट वैल्यू से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी इसमें वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इंसर्ट का। नेक्स्ट है अपडेट, मीन्स एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उनको चेंज करना है। तो सपोज़ इसका मुझे कुछ अपडेशन करनी थी अपने टेबल में, तो पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू 3 वेयर कंडीशन। तो अगर मुझे सपोज़ कोई स्टूडेंट रहता था होशियारपुर में, बट उसने अभी चेंज करके वो दिल्ली चला गया, राइट। तो अगर वो स्टूडेंट दिल्ली चला गया तो उसका मतलब उसको अपना एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा, तो होशियारपुर से उसको दिल्ली करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन लगानी है कि आप किस चीज़ की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे इसकी एग्जांपल देख लो, अपडेट स्टूडेंट, नाम उसका रीटा कर दिया जाए जिसका एड्रेस क्या है, दिल्ली, राइट। तो इसमें आप हमने क्या किया है, जो दिल्ली का रेजिडेंट स्टूडेंट है उसका नाम पहले जो मर्जी रहा हो, हमें उसका नाम चेंज करके क्या कर देना है, रीटा। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपका इस टाइप से आ जाएगा, नेम के नीचे आ जाएगा रीटा और एड्रेस के नीचे आ जाएगा दिल्ली, राइट। थर्ड आपकी DML कमांड है डिलीट। अब जो डिलीट है आपका, वो आपका 2 टाइप से होता है, या तो डिलीट से आप पूरे टेबल की वैल्यूज़ डिलीट करना चाहते हो या पर्टिकुलर टप्पल को डिलीट करना चाहते हो। एंड माइंडेड कि जब भी हम डिलीट करते हैं सीक्वल में, एक पूरा टप्पल या पूरी रो डिलीट होती है, ऐसे नहीं सिंगल वैल्यू बीच में से डिलीट हो जाएगी, नो, पूरा टप्पल ही डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर टप्पल को तो आप कंडीशन लगा सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, राइट, लाइक डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट है, वेयर नेम इक्वल्स टू रीटा। तो जिसका भी नाम रीटा है वो वाले पूरे टप्पल को डिलीट कर दिया जाए। तो जब आप इसको रन करोगे डिलीट को, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये रीटा और दिल्ली वाली जो वैल्यूज़ है वो डिलीट हो जाएंगी, राइट। और सेकंड मैंने आपको बताया है डिलीट ऑल भी होता है। डिलीट ऑल का मतलब टेबल की पूरी वैल्यूज़ डिलीट करना चाहते हो, तो दैट इज़ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो टेबल आपका पूरा एम्प्टी हो जाएगा, उस टाइप से पेयर हो रहा होगा, राइट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सिलेक्ट, ये भी आपकी DML कमांड है। अब सिलेक्ट में हम लोग अगर किसी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, ठीक है, डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम सिलेक्ट यूज़ करते हैं डेटाबेस में, राइट। तो सिलेक्ट का काम है टू सिलेक्ट स्पेसिफिक वैल्यूज़। तो सबसे पहले इसका सिंपल है पैटर्न कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को देखना था, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि मुझे एड्रेस चाहिए, सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज़ रिया। तो जिसका नाम रिया है मुझे उसका एड्रेस चाहिए, तो हमें पता है उसका एड्रेस क्या था, दिल्ली। तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा, राइट। अगर मुझे कोई सिंगल वैल्यू डिस्प्ले नहीं करानी है, पूरा टेबल डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो जब मैंने इसको रन किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो इस टाइप का पेयर हो जाएगा, राइट। रिया भी और दिल्ली उसकी सारी वैल्यूज़ दिख जाएंगी। एक नेक्स्ट होता है डिस्टिंक्ट। अगर सपोज़ मेरे जो टेबल है इसमें ना रिया की या दिल्ली की 2-3 एंट्रीज़ थी, बट मुझे सिंगल एंट्री चाहिए थी, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं डिस्टिंक्ट। तो अगर रिया की एंट्री 2 जगह पे हुई पड़ी है, राइट, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा देंगे क्योंकि उसकी सारी वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी। अगर आपने उसको 2 बार एंटर कर दिया, गलती से डुप्लीकेट वैल्यू हो गई है, तो डिस्टिंक्ट की हेल्प से आप उसको सिंगल ही डिस्प्ले करा सकते हो। अगर आपने गलती से रिया वाली एंट्री 10 टाइम्स कर दिया है, तो अगर आप डिस्टिंक्ट लगाओगे वो आपको सिर्फ एक बार ही दिखेगी, राइट। तो इसका ये बेनिफिट है अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं शो करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।